Good morning, Jai Hind, and I welcome you on the Filler Farm. Okay, so due to some technical reason, unable to on my video. So let's see. Let's begin today's class without getting delay. Uh, it's 10 to 15 minutes. We got delay, and let's start without getting delay now. See. So it's really good to have session today. And again, today we are going to discuss the most important topic that is Lang and Parole, Pidgin and Creole, etc. These are the language varieties which we are going to discuss today. Okay. So join the class quickly and let's begin today's class. So once again, I welcome you all, and here is the course. About the course you can purchase, and here I am your mentor. Okay, so dear students, you can meet me on YouTube also at 10 p.m. and on app 7 a.m. every day. I take the class Monday to Saturday. Okay, and if somebody wants to get 10% off, so using this code, you can get 10% off. Okay, see, sorry. And this is our faculty. They all are qualified. They have qualified UGC NET, and now they are the faculty of Filler Farm. Everyone is teaching very well, and you can join us. Okay, see. So once again, let me remind you, this is our unit 5 is going on, and NATE, JRF, and PhD. Now, once again, let me remind you, these three in these three category, the result of UGC NATE will be declared. Okay, the first category JRF, it means you are eligible for all three: assistant professor, for PhD, and for research fellowship also. Okay. And second thing, NATE, you are qualified for assistant professor and PhD, and only PhD means in any university you can directly be selected for a PhD also. Okay, on the basis of interview only. है ना? So these three category in these three categories, result will be announced, and that's good. That's good. You can opportunity for you. That's good opportunity for you. Okay. So unit 5, once again, let me remind you, we are talking about language. This is language basic concept, theories, and pedagogy. So once again, let's start today's class. We are talking about language varieties, and in language varieties, these are two categories are very important. Okay, pigeons and creoles. So once again, let me remind you, this is very important. What is pigeons? Let's begin. Okay, so a pidgin is a language is grammatically simplified communication method. Okay, so it is a communication method. ये communication method है और grammatically simplified है ना? कैसे कब इसका यूज होता है? It usually develops. कब develop होती है? When two or more groups, दो या दो से अधिक group have to develop a system of communication when a common language doesn't exist. Remember, this is you can say most important. See, again, let me remind you, there are two groups: A group and B group. In each group, there are many members. Okay, so but these two groups, they have to do trade, means इनको व्यापार करना है, मान ले इन दोनों ग्रुप को व्यापार करना है, दे है ना, but these two groups, they are unaware of the languages, their languages, है ना, यानी ये दोनों ग्रुप जो है, इनको व्यापार करना है, किसी कारण से इनको कम्युनिकेट करना है, और दोनों की भाषाएं बिल्कुल अलग है। तो अब क्या करें? तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है एक, यानी कोई कॉमन लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती। कॉमन का मतलब ये है कि ये दोनों एक ऐसी भाषा का यूज करें जिससे कि दोनों अपने अपनी भाषा को, दोनों अपनी बात को समझ जाए। तो फिर क्या होता है कि कोई कॉमन लैंग्वेज भी एग्जिस्ट नहीं करती है, डजन एग्जिस्ट। फिर एक नई लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। भाई कुछ वर्ड्स जो है ये ए ग्रुप के ले लिए, कुछ वर्ड्स जो है बी ग्रुप के ले लिए, और ऐसा मिला के कुछ ट्रेड और इन सब के मिला के क्या है, एक नई लैंग्वेज डेवलप की जाती है कम्युनिकेशन के लिए, लिमिटेड कम्युनिकेशन के हिसाब से।
वो नई लैंग्वेज क्या कहलाती है? पिजिन्स कहलाती है। पुराने समय में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता था। मध्य एशिया वगैरह में आप देखेंगे, जैसे भारत से भी कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए, यूरोप से कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए मध्य एशिया में। अब मध्य एशिया की भाषा को नहीं जानते, तो फिर वहां पर एक नई भाषा, कॉमन लैंग्वेज बनाई जाती है, उसी को पिजिन्स कहते हैं। जरूरत के लिए नई भाषा जनरेट कर ली जाती है, उसी को पिजिन्स कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देखिए कि इट यूजुअली डेवलप्स व्हेन टू और मोर ग्रुप्स हैव टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन कॉमन लैंग्वेज डजंट एग्जिस्ट। बिल्कुल, आपको अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि दो लोग आपस में मिलते हैं, लेकिन दो से अधिक ग्रुप आपस में मिलते हैं। दो या दो से अधिक ग्रुप, 3 ग्रुप हो सकते हैं, 4 ग्रुप हो सकते हैं, है ना। जैसे मध्य एशिया में मान लो व्यापार करने के लिए जाना है, तो चीन से भी लोग आ गए, भारत से भी गए, यूरोप से भी गए, है ना। और यूरो आप अमेरिका से भी आ गए, तो वो सारे लोग जो है एक दूसरे की कोई भी व्यक्ति है ना भाषा नहीं जानते हैं। तो फिर क्या है, दे डेवलप अ कॉमन लैंग्वेज, और वही पिजिन्स होता है। इट इज कॉमन, है ना, इट इज कॉमन, इट इज कॉमन व्हेन कम्युनिटीज कम टुगेदर फॉर ट्रेड। जनरली व्यापार वगैरह के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। इट इज कॉमन when communities are come together for trade and they are not considered complete languages, they are not, ठीक है। Right. ठीक है, सी, तो यहाँ पर क्या है, ज्यादातर व्यापार के उद्देश्य से जब लोग इकट्ठे होते हैं, और वहां पर क्या है, कोई कंप्लीट लैंग्वेज नहीं होती है ना, वहां पर दूसरी कोई कंप्लीट लैंग्वेज नहीं होती है, तो फिर ये भाषा का विकास होता है। पिजिन्स आर नॉट नेटिव, दूसरी बड़ी बात है कि ये नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है टू एनी स्पीच कम्युनिटी, है ना। जहां पर ये डेवलप हो रही है वहां पर कोई नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है। ये तो एक नई जरूरत के हिसाब से डेवलप की जाती है। इट इज बिल्ट फ्रॉम द वर्ड्स, ये देखिए कैसे बनती है, फ्रॉम द वर्ड्स एंड साउंड्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। जितने लोग वहां आए हैं उतने लोगों से मिल करके किसी के वर्ड्स लिए, कहीं साउंड्स लिए, अलग अलग भाषाओं के साथ, है ना, जो विद लिमिटेड कोर वोकेबलरी, जरूरत के हिसाब से लिमिटेड कोर वोकेबलरी के साथ में इस भाषा का विकास होता है। कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं होती जिसको अपना लिया, ये नई जनरेट होती है, अनेकों भाषाओं से मिलकर के एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप की जाती है, जिससे कि सभी लोग एक दूसरे की बात को समझ सके और उनका व्यापार हो सके। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखें तो जनरली हैव लिमिटेड वोकेबलरी, सिंप्लीफाइड ग्रामर, यूज मेनी ओनोमोटोपियाज, ओके। कंसोनेंट क्लस्टर होते हैं, जैसे बेस्ट प्लेयर है तो बेस्ट प्लेयर बोल देंगे, इस तरीके से हम देख चुके हैं। और देखिए, नॉट टिपिकली अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ एनी कंट्री बट स्पोकन एज अ सेकंड लैंग्वेज। बिल्कुल, किसी कंट्री की नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन स्पोकन मतलब सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। कॉमनली सीन एज बिलो बीइंग लो प्रेस्टीज लैंग्वेज वेराइटीज, है ना। जनरली जो है लो प्रेस्टीज लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाई लैंग्वेज तो मानक होती है, स्टैंडर्ड होती है, तो ये जो है लो प्रेस्टीज लैंग्वेज वेराइटीज कहा जाता है। सिंप्लीफाइड सेंटेंस एंड फ्रेजेस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेंडर एंड नंबर, सिंगुलर प्लूरल, इन सब का कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती। जेंडर है कौन सा है, जेंडर मेस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, नंबर सिंगुलर है, प्लूरल है, इन सब का अस्तित्व नहीं होता है इसमें। होगा भी तो बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्रियोल। क्रोल क्रियोल की हम अगर बात करें, लेट मी गिव यू क्रियोल। तो क्रियोल क्या है, जब ये जो पीजन हमने पढ़ा, पीजन्स, है ना, जो आवश्यकता के लिए डेवलप हुई, जब ये पीजन्स ग्रेजुअली व्हेन पीजन्स स्टार्टेड यूजिंग फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, pigeons are used for long time, then it will become native language, and it becomes it develops its vocabulary, it develops its grammar, it develops its communication skill, see, in a systematic way, and then it becomes you can say permanent, then it is called a creole। जो pigeons है उसी को लंबे समय तक वो यूज करेंगे, और उसी का अपना ग्रामर डेवलप हो जाएगा, उसका अपना वर्ड्स वोकेबलरी डेवलप हो जाएगी, और एक लंबे समय तक यूज करते करते नेटिव भाषा में उस तरीके से शामिल हो जाती है, तो उसी को क्रियोल कहते हैं। ध्यान रखना, पिजिन्स जो है वो
टेम्पररी है, क्रियोल उसका परमानेंट है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया अ क्रियोल लैंग्वेज इज अ स्टेबल, ये देखिए क्रियोल लैंग्वेज क्या है, स्टेबल है, नेचुरल लैंग्वेज है, दैट स्टार्ट्स विद अ सिंप्लीफाइड पिजन्स, ये देखिए स्टार्ट्स विद अ सिंप्लीफाइड पिजन, देन इवॉल्व्स बाय मिक्सिंग टू और मोर लैंग्वेजेस इनटू अ न्यू वन, ये देखिए। तो दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर के पिजिन्स का जो विकास हुआ है वही फिर एक न्यू वन के यानी नई भाषा के रूप में स्थायी हो जाती है, उसी को क्रियोल कहते हैं। बस सिंपल ध्यान रखना, पिजिन का स्थायी रूप जो है क्रियोल है। It can be a new mother tongue. Definitely, it can be a new mother tongue to replace a farmer mother tongue. बिल्कुल, ये नई मदर टंग हो सकती है, उस पर्टिकुलर जहां पे डेवलप हुई उनके लिए ये क्या है, नेटिव हो जाएगी, उनके लिए ये मदर टंग के रूप में काम करेगी, और उनकी जो पुरानी फार्मर मदर टंग है उसको रिप्लेस करने का काम करेगी। इसके क्रियोल के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पहला ये है कि क्रियोल इज अ नेचुरल लैंग्वेज, रिमेंबर, that develops from natural use. Creole is a natural language that develops from natural use. It is not constructed like ये देखिए Esperanto और Klingon, ये देखिए टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, क्रियोल इज अ नेचुरल लैंग्वेज दैट डेवलप्स फ्रॉम नेचुरली। बिल्कुल, क्रियोल क्या है, नेचुरल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि नेचुरली जो अलग अलग भाषाओं के जो नेचुरली कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको मिला के पिजिन्स का विकास हुआ, और फिर बार बार उसको नेचुरली लोग यूज करते हैं तो वो फिर नेचुरल लैंग्वेज बन जाती है। इट इज नॉट कंसिडर्ड लाइक एस्पेरेंटो, तो ये उधर की भाषाएं हैं। क्रियोल लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम पिजिन, ये देखो ये मेन पॉइंट मैं ना बार बार कह रहा हूं आपको, क्रियोल लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम पिजिन, रेड, ये देखिए ऑन फॉर डेफिनेशन, ये देखिए रीड ऑन फॉर डेफिनेशन, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्रियोल लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम पिजिन, ये ध्यान रखना है। A Creole is a language that has evolved from contact between European language, ये देखिए क्रियोल कैसे डेवलप हुई, जो यूरोपियन भाषाएं हैं उनसे डेवलप होती है, उनके कांटेक्ट में आने से। देखिए कौन कौन, फ्रेंच है, इंग्लिश है, पुर्तगीज है, एंड अ लोकल लैंग्वेज, और वहां की कोई पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज है, आर अ वेराइटी ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, या है ना जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक नई क्रियोल का डेवलपमेंट हुआ, है ना। मान ले एक जगह पे फ्रेंच बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और पुर्तगीज बोलने वाले और लोकल लैंग्वेज वहां जहां पर व्यापार कर रहे हैं वहां पहुंचते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये सभी लोग एक दूसरे की भाषा पूरी नहीं जानते भाई। मान लो फ्रेंच वाला इंग्लिश जानता है लेकिन पुर्तगीज नहीं जानता, लोकल लैंग्वेज नहीं जानता, लोकल लैंग्वेज इन तीनों लैंग्वेज को नहीं जानता है। एंड दैट इज, दिस इज द रीजन द localite people, they don't know the three all languages, French, English and Portuguese, and that is the reason that they develop new language, और इसीलिए फिर एक नई भाषा का विकास होता है जिससे लोकल लोग भी बोल सके, फ्रेंच भी बोल सके, इंग्लिश वाले भी बोल सके और पुर्तगीज भी, और इसीलिए जो है एक नई पिजिन्स का डेवलपमेंट होता है, और उसी से फिर जब इसका बार बार यूज होता है तो क्रियोल बन जाती है। मोस्ट क्रियोल्स एमर्ज्ड ड्यूरिंग द स्लेव, ये देखिए मोस्ट क्रियोल्स एमर्ज्ड ड्यूरिंग द स्लेव ट्रेड, ये देखिए, है ना। ज्यादातर क्रियोल्स कब डेवलप हुई, स्लेव ट्रेड, एंड आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द वेस्ट इंडीज एंड अफ्रीका। वेस्ट इंडीज और अफ्रीका में डेवलप हुई, उसका कारण है वहां पर आपको ज्यादातर दास मिल जाएंगे और व्यापार, है ना, ये सब करते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। देर आर ऑल्सो मेनी इंग्लिश बेस्ड क्रियोल्स इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये देखिए आपको अंग्रेजी से मिलकर के बनी हुई बहुत सारी क्रियोल साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में भी मिल जाएगी। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्रियोल इंक्लूड, क्या क्या एग्जांपल है देखिए, ये सब जो है वहां की लैंग्वेजेस है। हैशियन क्रियोल, फ्रेंच बेस्ड फ्रांस, अच्छा ये बेस्ड क्यों कहा, इंग्लिश बेस्ड फ्रेंच बेस्ड ऐसा क्यों कहा, इनका ज्यादा प्रभाव रहा, इनका ज्यादा प्रभाव रहा, इनका ज्यादा प्रभाव रहा। ठीक है, चलिए जमैकन,
है ना। जमैकन पाइटोस ये भी इंग्लिश बेस्ड है, इंग्लिश का ज्यादा प्रभाव रहा। रीयूनियन इज फ्रेंच बेस्ड है। सो दीज आर दी ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्रियोल, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार और फिर देखिए, फुल्ली डेवलप्ड ग्रामर, उसमें क्या थी, है ना, उसमें ग्रामेटिकल था लेकिन कम थी पिजन्स में। एक्सटेंसिव वोकेबलरी, बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा वोकेबलरी भी हो जाएगी। फुल नेटिव लैंग्वेज दैट हैव डिराइव्ड फ्रॉम पिजन्स। नेटिव लैंग्वेज क्यों कहने लगे, क्रियोल को नेटिव लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोकलाइड हो जाती है, नेटिव हो जाती है ना। और पिजिन्स के द्वारा भले बाद में व्यापार हो न हो, लेकिन जो स्थायी रूप से होते हैं वहां पर जो नेटिव लोग होते हैं उसको यूज करना शुरू करते हैं, है ना, बिल्कुल यूज करते रहते, कंटिन्यूसली दे यूज दिस लैंग्वेज एंड दैट इज द रीजन। सो हम देखें, मोस्ट कॉमनली व्यूड एज वर्नाकुलर लैंग्वेज, बिल्कुल वर्नाकुलर मीन्स लोकल लैंग्वेज के रूप में इसको कॉमनली देखा जाता है। ऑल्दो इन कंट्रीज वेयर दे आर वाइडली यूज्ड दे आर व्यूड एज हैविंग हायर प्रेस्टीज। हालांकि जिस देश में इसका यूज होता है वहां पर इसको हायर प्रेस्टीज के रूप में, हायर प्रेस्टीज हायर प्रेस्टीज के रूप में इसको माना जाता है। मोस्ट क्रियोल्स आर बोर्न ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन यूरोपियन एंड नेटिव लैंग्वेजेस, ज्यादातर क्योंकि यूरोप में जो यूरोपियन है उनके कॉन्टेक्ट में जो लोकल लैंग्वेजेस आई उनसे क्रियोल्स का जन्म हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा 14 या 13 14 16 17 सेंचुरी में आप देखा होगा, है ना, 16वीं 17वीं शताब्दी में आपने देखा कि जो यूरोपियन है, ब्रिटेन है, पुर्तगाल है ना, इंग्लैंड, ये सब जो है, या आप देखेंगे स्पेन है, फ्रांस, ये सब क्या है, यूरोपियन जितनी भी ज्यादातर कंट्रीज है, ये 16वीं 17वीं 15वीं शताब्दी में क्या है, व्यापार करने के लिए निकले थे। इंडिया में भी आए, पूरे विश्व अलग अलग वर्ल्ड में फैले। तो इससे क्या हुआ कि ये वहां पर व्यापार करने के उद्देश्य से वहां रुके और जो नेटिव लैंग्वेज है उनके साथ में संपर्क में आए। एंड क्रियोल्स माइट इंक्लूड सम वर्ड्स स्ट्रक्चर फ्रॉम यूरोपियन, है ना, यूरोपियन लैंग्वेजेस में, जैसे सजेस्ट फ्रेंच और पुर्तगीज, बिल्कुल। तो जो क्रियोल्स का डेवलपमेंट ही यूरोपियन लैंग्वेजेस से ज्यादातर हुआ, तो डेफिनेटली वहां की वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे, वहां का स्ट्रक्चर भी आपको वहां की लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इसमें मिलेगा, ऐसा। तो फ्रेंच लैंग्वेज, पुर्तगीज, इंग्लिश, इन सब से क्या है, ज्यादातर क्रियोल्स का विकास हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पिजन एंड क्रियोल, वेट, okay. So my voice, am I audible? Due to technical issue, unable to on my video, but my my voice is clear. Am I audible? Okay. See, wait. Let me read this. See, so the main difference between pigeons and creoles include, क्या क्या difference है, पहला, first, pigeons are not spoken as native language. Once again, let me remind you, pigeons जो है वो नेटिव लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं होती है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नई लैंग्वेज है। पिजिन्स आर नॉट स्पोकन एज अ नेटिव लैंग्वेज, है ना, नेटिव बाय एनी कंट्री, किसी भी देश में। वेयर एज कंट्रीज हैव क्रियोल्स, दे आर नेटिव लैंग्वेज, बिल्कुल। पिजिन्स नेटिव नहीं होती है, जरूरत के लिए उसको डेवलप हुआ है। या अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है? बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन जो क्रियोल्स होती है वो क्या है, वो नेटिव के रूप में यूज होती है, बिकॉज स्टार्टेड यूजिंग द पीपल ऑफ द कंट्री, दे स्टार्टेड यूजिंग pigeons more and more, and for the long time they when they use the pigeons become creoles. Pigeons have very basic grammar,
Pidgins have very basic grammar, whereas Creoles have much more complex and full grammar. So definitely, Pidgins it is a developing part. Pidgins in the development, you can say it is basic, having includes basic grammar, basic vocabulary, etc. So it is having basic grammar only Pidgins. But when it develops, when it is used for a long time, then it has more complex and more full grammar. Okay. Pigeons tend to have limited vocabulary बिल्कुल pigeons के पास में limited vocabulary होगी whereas creoles are much more extended लेकिन creoles समृद्ध हो जाएगी. Pigeons are considered reduced forms of the other languages. ये देखिए pigeons क्यों बनती हैं जो दूसरी भाषा के जो है उसके फॉर्म को रिड्यूस करना कम से कम शब्दों को यूज कर मतलब कम से कम से शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने के कारण whereas creoles have developed into fully fledged languages of their own और बाद में फिर धीरे धीरे क्या है उसका फिर एक पूरा डेवलपमेंट होता है. तो ये अंतर है आपको ध्यान रखना है. तो ये हमने पढ़ा पिजिन्स और क्रियोल के बारे में. अब हम पढ़ते हैं लेंग एंड पेरोल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेंग एंड पेरोल. See, the distinction between the French words, देखिए, लेंग एंड पेरोल क्या अंतर है इसमें देखते हैं. लेंग एंड पेरोल फ्रेंच वर्ड है दोनों. दोनों फ्रेंच वर्ड है. दोनों का लेंग का मतलब होता है लैंग्वेज. लेंग मीन्स लैंग्वेज या टंग और पेरोल का मतलब होता है स्पीच. enters the vocabulary of theoretical linguistics with Ferdinand de Saussure, है ना, फ्रेंच लिंग्विस्टिक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक. ये देखिए सॉसर क्या है इनका वर्क है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक. ये वर्क है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक which was published posthumously in 1959 after having been collected from student notes. एक्चुअल में क्या है फर्डिनेंड डी सोसर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे कॉलेज में पढ़ाते थे उनके विद्यार्थियों ने जो नोट्स बनाए थे फर्डिनेंड डी सोसर के क्लास के उस नोट्स को कंबाइन करने के बाद में उनके डेथ के बाद में क्या है 1915 में जो है इसके ऊपर ये जो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स जो वर्क आया था. ठीक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक सोसर के नाम से. तो इसमें क्या है इसी में क्या है इंटर द वोकेबुलरी ऑफ थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक विद. तो इसी में जो है आपको लेंग एंड पेरोल का कॉन्सेप्ट मिलेगा. क्या है देखते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंग एंड पेरोल वाज गिवन बाय फर्डिनेंड डी सोसर. है ना इन्होंने जो बच्चों को यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जो पढ़ाया इन्होंने और इन्होंने लेंग एंड पेरोल का कॉन्सेप्ट जो दिया वो जो है यहाँ पर है. क्या है ही डेवलप्ड है ना ही डेवलप्ड यहाँ पर आएगा डी. ठीक है ही डेवलप्ड स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स and binary oppositions is the most important element of structuralism. ये देखिए है ना. तो यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स और इनका कहना है कि कोई भी सेंटेंस कोई भी वर्ड्स कोई जो लैंग्वेज होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती है. ठीक है देखिए हम लिंग एंड पेरोल आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी अपोजिशंस. है ना. अब ये क्या होता है देखते हैं. These two are French words. पहली बात तो ये है फ्रेंच वर्ड्स हैं. अब यहाँ पर देखिए लेंग मीन्स लैंग्वेज आर टंग वाइल पेरोल मीन्स स्पीच आर स्पीकिंग. ये देखिए है ना पेरोल लेंग मीन्स लैंग्वेज आर टंग वाइल पेरोल मीन्स स्पीच आर स्पीकिंग. पेरोल मीन्स स्पीच आर स्पीकिंग. ध्यान रखना. तो यहां पर जो है जो लेंग है वो लैंग्वेज को डिनोट कर रही है और पेरोल जो है वो स्पीच या स्पीकिंग को डेवलप कर रही है. अब देखिए यहां पर लैंग्वेज कंप्राइजेस द सेट ऑफ रूल. अब देखिए यहां पर लैंग्वेज जैसे हमने कहा क्या है तो बिल्कुल उसमें उसके हमको पता जैसे हमने लैंग्वेज नाम लिया तो हमें पता चलता है कि उसके अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे ग्रामर होगी. है ना कोई भी भाषा है उसके रूल्स होंगे उसकी ग्रामर होगी. इट कंप्राइजेस बिल्कुल. तो लेंग में क्या क्या आता है सिंटेक्स आएगा फोनेटिक्स आएगा स्पेलिंग एंड दूसरी चीज आएगी. लेकिन हम देखते हैं पेरोल में इज द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स टू प्रोड्यूस अटरेंस
utterance means to speak, to deliver, to express. मीन्स जब हम लेंग की बात करते हैं तो लेंग क्या है, सेट ऑफ रूल से है, ग्रामर है, सिंटेक्स से है, फोनेटिक्स से है, स्पेलिंग एंड अदर चीजें हैं। लेकिन जैसे हम पेरोल की बात करें तो पेरोल उसका प्रैक्टिकल यूज है, यानी वे ऑफ स्पीकिंग। जब हम ग्रामर और सेट ऑफ रूल्स को, वोकेबलरी को जब हम स्पीच में लेते हैं, जब हम अभिव्यक्ति में लेते हैं, व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग, तो ये पेरोल हो जाता है। तो लिंक क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, पेरोल जो है टू प्रोड्यूस अटरेंस है, टू स्पीक है। ठीक है, लिंग इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिल्कुल। इट एग्जिस्ट इनसाइड द माइंड ऑफ अ पर्सन, है ना। लिंग क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये मनुष्य के दिमाग में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग हियर, आई एम समटाइम आई स्पीक इन हिंदी, समटाइम आई स्पीक इन इंग्लिश, बाइलिंगुअल आई एम स्पीकिंग हियर, सो आई अंडरस्टैंड। तो ग्रामर, अब जैसे मुझे अगला सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि सेंटेंस कौन सा, द सेंटेंस इज फ्रॉम विच टेंस, हम टेंस कौन सा है, क्या है, कंटिन्यूअसली आई एम स्पीकिंग। तो इंडिपेंडेंट है लिंग, क्योंकि जो ये जो ग्रामर है, सेट ऑफ रूल्स है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे मनुष्य के दिमाग में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट है इसीलिए। पेरोल क्या होता है, पेरोल इज डिपेंडेंट। पेरोल क्या है, डिपेंडेंट ऑन लेंग, बिल्कुल। आपका जो है अगर लेंग, बिल्कुल डिपेंडेंट है पेरोल। लेंग पे अच्छा कमांड है, यानी लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है, यानी आपका सेट ऑफ रूल्स आपका ठीक है। इसलिए तो जैसे हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लास करते हैं, वाई, है ना। तो अब जैसे, तो यहाँ पर क्या है, लेंग क्या है, पेरोल, यहाँ पर बिल्कुल पेरोल जो है लेंग के ऊपर डिपेंड है। यानी आप यू मान लीजिए स्पोकन, है ना, पेरोल क्या है, स्पोकन है पेरोल, है ना। और ये लेंग क्या है, ये लेंग जो है ये लैंग्वेज है। तो आपको जैसे मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती, आपको सीखना है, तो पहले क्या है, सेट ऑफ रूल्स और ये सब कुछ सीखेंगे, और उसके बाद में फिर आप स्पोकन करेंगे, यानी पेरोल करेंगे। अब आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पेरोल इसलिए डिपेंड है लेंग के ऊपर। पेरोल इज डिपेंडेंट ऑन लेंग एंड इज मेयरली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द abstract systems of governing principles and to speech and utterance, ये देखिए, is merely a manifestation of the abstract system of governing principles into speech and utterance. It is not possible without existence of language। बिल्कुल, जो स्पीच है, जो अटरेंस है, ये क्या है, जो सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट हमें दिखाई नहीं देता, हमारे माइंड में जो फिट हुआ है, वो सिस्टम को समझने के बाद में हम जो है एक्सप्रेस करते हैं। और बिना लेंग के, बिना सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर के, यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन नॉट एक्सप्रेस, मीन्स यू कैन नॉट डिलीवर पैरोल। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो लेंग क्या है, आपका सेट ऑफ रूल्स है, ग्रामर है, सिंटेक्स है, पैरोल क्या है, अटरेंस है, डिलीवरेंस है। सी, लेंग इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, वेयर एज पैरोल इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस सिस्टम। बिल्कुल, आपको अब समझ में आ गया होगा। द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, और पेरोल क्या है, प्रैक्टिकल यूज ऑफ दीज सिस्टम्स है। पेरोल जो है प्रैक्टिकल यूज ऑफ दीज। Lang is the system of language, whereas parole is the practical use of this system। ठीक है। An individual can use the language system, कोई भी लैंग्वेज सिस्टम को यूज कर सकता है, टू प्रोड्यूस स्पीच एंड आल्सो टू प्रोड्यूस राइटिंग। बिल्कुल, अगर आपका लैंग्वेज सिस्टम ठीक है, लैंग्वेज सिस्टम का मतलब ये है कि आपकी ग्रामर ठीक है, आपके ग्रामर के रूल्स आपके ठीक है, आपकी वोकेबलरी ठीक है, आपका सिंटेक्स ठीक है, आपके फोनेटिक्स ठीक है, तो कोई भी क्या है, स्पीच को प्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी राइटिंग के रूप में वो सिस्टम को प्रोड्यूस कर सकता है। Hence, writing can also be considered as an art of act of payroll। ये देखिए, राइटिंग भी क्या है, act of payroll ही माना जाएगा, क्योंकि लिखने के लिए भी हमें रूल्स की जरूरत पड़ती है। The very existence of a complete ये देखिए, लैंग्वेज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लैंग एंड पैरोल। ठीक है, complete language cannot exist without lang and parole। language is thus equal to lang and parole, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। So the very existence of complete language cannot exist without, कोई भी जो complete language होती है वो विदाउट लैंग एंड पेरोल, यानी पेरोल और लैंग के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती है।
है ना, क्योंकि लैंग्वेज के लिए सिस्टम होना जरूरी है और उसके स्पीच डिलीवरेंस यानी उसको अटरेंस होना भी जरूरी है। लैंग्वेज इज दस इक्वल टू लैंग एंड पेरोल। बिल्कुल, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज क्या है, दोनों है, लैंग भी है और पेरोल भी है। हम लैंग्वेज कहते हैं तो सिर्फ सेट ऑफ रूल्स नहीं होता है। लैंग्वेज मिलता है लैंग से यानी सिस्टम ऑफ रूल से, और पेरोल से यानी वे ऑफ स्पीकिंग से, है ना, प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस सिस्टम। तो लैंग्वेज इज इक्वल टू लैंग एंड पेरोल, ध्यान रखना है। These two entities had to exist to make a language complete and meaningful। बिल्कुल, ये दोनों मिलकर के, लैंग एंड पेरोल मिलकर के किसी भी भाषा को मीनिंगफुल और कंप्लीट बनाते हैं। लैंग इज एब्स्ट्रैक्ट। बिल्कुल, लैंग एब्स्ट्रैक्ट दिखाई नहीं देता है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर। बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है ना, दिखाई नहीं देता है। आप मान लें अचानक कोई भी नई दूसरी लैंग या सेट ऑफ रूल्स आप देखने सिस्टम, लैंग्वेज सिस्टम आप सीखने के लिए जा रहे हैं, so you cannot you just you know, language is abstract and it is difficult to observe and almost impossible to capture, and that is the reason that we are sometimes unable to learn new languages. Sometimes it is difficult for us to learn new languages because it is very difficult to capture easily. So language is abstract and it is difficult to observe and almost impossible to capture, and this is the reason that in India also, in India language is English language we are trying to learn. Most of the people they don't know English, so speak they started learning English. But sometimes the rules and set of system of language is abstract, so that is why it is difficult to learn. But we learn. Payroll is, however, concrete and can be seen in writing, even recorded as a speak by individuals. लेकिन अदर हैंड वी सी पैरोल क्या कॉन्क्रीट है, हम राइटिंग के रूप में उसको देख सकते हैं, स्पीच के रूप में हम देख सकते हैं, किसी के द्वारा बोला जा रहा है ऐसा। लैंग्वेज लैंग एग्जिस्ट बिफोर पैरोल, ये देखिए, तो पैरोल से पहले लैंग एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना है। पहले सिस्टम आएगा, रूल्स आएंगे, उसके बाद ही पैरोल होगा, ठीक है। लैंग इज द कलेक्टिव एक्ट ऑफ द होल रेस, इट इज इंटरनल एंड इननेट। सो लैंग इज द कलेक्टिव एक्ट ऑफ द होल रेस। होल रेस का मतलब होता है संपूर्ण प्रजाति के लिए क्या है, ये कलेक्टिव एक्ट है ना। लैंग को जो है पूरी प्रजाति, वो है ना, पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली पूरी प्रजाति, जैसे हिंदी है तो हिंदी क्या है, इसका सिस्टम है। तो ये हमारी जो पूरी प्रजाति है, भारतीय प्रजाति है जो हिंदी जानते हैं, उसके लिए ये क्या है, कलेक्टिव एक्ट है। इट इज इंटरनल एंड इननेट, इट इज इंटरनल, रिमेंबर। इट कैन बी चेंज, पेरोल इज एन इंडिविजुअल एक्ट और एक्सप्रेशन, है ना, इट कैन नॉट बी चेंज, सॉरी, लैंग्वेज जो है, ये लैंग क्या है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पेरोल इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। पेरोल क्या इंडिविजुअल है ना, जैसे इंग्लिश का, हिंदी का जो एक सिस्टम डेवलप है, लेकिन उसी सिस्टम के आधार पे हम देखें तो पेरोल क्या है, इंडिविजुअल होता है। बिल्कुल, सबका अपना बोलने का तरीका होता है। इट चेंजेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, it changes from one individual to another and is subjected to individual preferences। बिल्कुल, है ना, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के में क्या है, पेरोल बदल जाता है। बिल्कुल, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग। हर एक का बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। तो लिंग यहाँ पर एक बार फिर से देखें तो सोसर क्या कह रहे हैं लिंग के बारे में, देखिए, मीन्स the language यानी any is a system of the grand structure that is complete and independent। बिल्कुल ध्यान रखना है, सोसर साहब कह रहे हैं, फर्डिनेंड डी सोसर, की लैंग क्या है, सिस्टम है ग्रांड स्ट्रक्चर का, और कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है। पेरोल क्या है, वहीं दूसरी तरफ हम पेरोल की बात करें तो बाय पेरोल फर्डिनेंड डी सोसर इंडिकेटेड द यूज ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल, क्या है, यूज ऑफ लैंग्वेज बाय अस। पेरोल इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन लैंग, ध्यान रखना, पेरोल इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन लैंग। पेरोल क्या है, लैंग के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सो दीज आर दी, हमने ये देखा, आप देखिए, सी, सो
लेट्स थोड़ा सा आगे हम, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सी, तो ये जो लिंक है वो सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, और पेरोल जो है वो पेरोल जो है डिपेंडेंट होता है। सी, अब now let us discuss synchronic and diachronic approaches. What is synchronic and diachronic approach? See, सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक बहुत महत्वपूर्ण है इंग्लिश में। आपको मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक। Synchronic linguistics is the study of language at one particular period, usually the present. It is also known as the descriptive linguistics. रुक जा, मेरे को क्लास ले लेने ना, ठीक है। तो synchronic linguistics is the study of language at one particular period, usually the present. It is also spoken known as the descriptive linguistics or general linguistics. ठीक है। चलो, तो सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी स्टॉप करना पड़ेगा क्लास को, ठीक है। सो विल बी कंटिन्यू टुमारो, है ना, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो माय फैमिली मेंबर्स हैव वॉक अप, सो ड्यू टू लेट मी ठीक है। सो let me end the class today. Will be continue tomorrow, okay? चलिए, ठीक है, it's enough today. चलिए, so I hope you understand. I hope we have discussed major important parts like Pidgin and Creoles, Lang and Payroll. इसके पहले हमने डिस्कस किया था रजिस्टर, है ना। वंस अगेन चलिए एक बार क्विकली हम आप देखें तो रजिस्टर को हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज रजिस्टर। हमने डायलेक्ट को डिस्कस किया था, है ना। हमने इडियोलेक्ट को डिस्कस किया था। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक, ओके। So it's enough for today. Wish you all the best. Thank you very much.